Good evening, everyone. In our previous lecture, we have discussed preparation of haloalkanes from alcohols by using the reagent like Lucas reagent, sodium bromide or potassium bromide with sulfuric acid, potassium iodide with phosphoric acid, thionyl chloride, then phosphorus trihalides, phosphorus pentachloride, and halogen in presence of red phosphorus. These all reagents we used to prepare haloalkanes from alcohol. Now today we will see preparation of haloalkanes from hydrocarbons. आज देखते हैं हाइड्रोकार्बन से हेलोअल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट वी विल टेक preparation of haloalkanes from alkanes by free radical halogenation. From alkane by free radical halogenation. अब देखो ये रिएक्शन आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है. अभी याद आ रहा है आपने अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी. याद आ रहा है. मैंने मैकेनिज्म भी बताया था. फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन कहते हैं जिसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं. इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स वर इन्वॉल्व्ड. सो दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम टू इट. ये रिएक्शन भी वही रिएक्शन है in which we are going to prepare haloalkanes from alkanes by simple free radical halogenation reaction. So let us take for example butane, and let's do chlorination of butane in presence of sunlight. For sunlight you can write UV, ultraviolet radiation, or you can also write H nu, where H nu shows energy of sunlight. So this will be forming two isomers here. एक तो मिलेगा this, the name of this compound is 2-chlorobutane, and the other one is this, which is called 1-chlorobutane. It means I have written only the monohaloalkane derivative. इस रिएक्शन में फॉर्म होने वाला सिर्फ मोनोहैलोअल्केन प्रोडक्ट ही मैंने लिखा है. और इस रिएक्शन को देख के मुझे क्या पता चल रहा है, दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म आइसोमेरिक मोनोहैलो और पॉलीहैलो डेरिवेटिव. इस रिएक्शन से क्या मिलेगा हर्षित? आइसोमेरिक, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे. आइसोमेरिक मोनोहैलो और पॉलीहैलो डेरिवेटिव्स. They are difficult to separate. These isomeric products are difficult to separate. मतलब इसमें से आप दोनों में से किसी एक को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा by this reaction. That is why this particular method is not very popular for industrial preparation of haloalkanes. ठीक है, इसमें आप लिमिटेशन भी लिख लीजिएगा. लिमिटेशन क्या है? What is the limitation? This method forms isomeric monohalo
or polyhalo derivative which are difficult to separate, which are difficult to separate. That is why this particular method do not holds importance in industrial preparation. मतलब ये मेथड है तो सही प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें से किसी एक को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होगा. फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. From alkenes and from alkenes there are now two different possibilities. alkenes के अंदर alkenes से प्रिपरेशन के लिए भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, और वो दोनों पॉसिबिलिटीज आपने अभी कुछ वीक पहले ही पढ़ा है alkenes के रिएक्शन में. क्या पॉसिबिलिटी है? सो by addition of hydrogen halide HX to alkene, by addition of HX hydrogen halide to alkene. याद आ रहा है? Let us take a very simple general formula of alkene. यहाँ पे ये बॉन्ड्स मैंने वेकेंट दिखाए हैं. आपकी इच्छा हो यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्लेस कीजिए, इट विल बी द फर्स्ट मेंबर, एंड इफ यू प्लेस डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आल्सो देन इट कैन फॉर्म द अदर मेंबर्स ऑफ द अल्कीन फैमिली. ठीक है? सो दिस एंड ऑन एडिशन ऑफ लेट्स टेक HCl ओनली, तो क्या होगा? ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑन द अदर कार्बन एटम chlorine gets added. That's it. The important part related to addition of HX which we have covered is Markovnikov addition of asymmetric alkene. तो इसके लिए एक asymmetric alkene का एग्जांपल ले लेते हैं. asymmetric alkene, इसमें एडिशन करते हैं. आप किसी का भी एडिशन कर सकते हो, HCl, HBr और HI. तो लेट्स ऐड HBr हियर. बोलो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट विल बी 2-bromopropane. लेकिन इसके साथ आपको माइनर प्रोडक्ट भी मिलता है विच इज 1-bromopropane. ये आपका मेजर प्रोडक्ट है एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. और इसी में एक और रिलेटेड पार्ट मैंने बताया था दैट इफ द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट. अगर यहाँ पे आप पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हो, अब पेरोक्साइड कैटलिस्ट में आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, आप टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो. सो द यूज ऑफ पेरोक्साइड विल कॉज दिस रिएक्शन टू अकर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ फॉलो होगा. यहाँ पे भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH2 CH2Br that is 1-bromopropane and CH3 CHBr CH3 2-bromopropane. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट विल डिफर. एक चीज और याद दिला दूं प्लीज हर्षित, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एसिड की बात कर रहा हूं, कोई दूसरे एडेंडम की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एडेंडम हाइड्रोजन एसिड HX। तो HX में this particular peroxide effect is applicable only to addition of HBr। ये सिर्फ HBr के एडिशन के लिए है, HCl और HI के एडिशन में पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो नहीं होगा। याद आया, कल क्वेश्चन में था ये और आपने गड़बड़ कर दी है। Yes, getting my point, this is not applicable to addition of HCl और HI। कौन सा इफेक्ट नॉट एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ HCl and HI? This peroxide effect। Peroxide effect is not applicable to addition of HCl and HI। Why not applicable? क्योंकि HCl में for breaking the bond between hydrogen and chlorine large amount of energy is required। And HI के केस में फ्री रेडिकल आयोडीन जनरेट तो होगा, बट आयोडीन एंड आयोडीन फ्री रेडिकल ज्वाइंस टू फॉर्म आयोडीन गैस, I2 गैस बन जाएगा, राइट। सो ये याद रखिएगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट हाइड्रोजन एसिड्स में सिर्फ HBr के एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जबकि मार्कोनिको में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मार्कोनिको रूल HBr, HCl, HI सबके केस में सेम रहेगा। Getting it? Fine. Now the reaction which we have discussed just now, preparation of haloalkanes from alkanes by free radical halogenation. A very important question related to this particular concept which has been previously asked in the board examination। ज़्यादा नहीं, अभी last to last year इससे related एक question आया है, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन में आया है। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन में आया था, और यू वोंट बिलीव एक ही रिएक्शन से, एक ही कॉन्सेप्ट से यू हैड द क्वेश्चन ऑफ अराउंड 4 मार्क्स। ये तो मतलब जैकपॉट जैसा क्वेश्चन हुआ ना। तो लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन ये है, आप देखना आपके इंटेक्स्ट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है दैट you have been given a hydrocarbon C5H12। C5H12 एक alkane है, and you are asked that among all different isomers of C5H12 which of the isomer will be forming a single monochloro compound अपॉन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब हुआ क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कौन सा आइसोमर ऐसा है जिसके फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से या फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन से एक सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म होगा? हाँ, आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस, एक आइसोमर के साथ डिस्कस करेंगे। और सुन लो, कौन सा ऐसा आइसोमर है जो 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, और कौन सा ऐसा आइसोमर है जो 4 डिफरेंट मोनोक्लोराइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला स्टेप है टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं CH3, CH2, 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 CH3। This is normal pentane, right? दूसरा आइसोमर है CH3, 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 sorry, CH2 and CH3। This is isopentane। And last one is CH3, C, CH3, C, CH3, CH3। ठीक है, ये नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। अब आपको ये देखना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में
जो भी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, ये फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे होना है? क्लोरीन से। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इन 4 कार्बन एटम्स पे अवेलेबल है, राइट? और ये चारों के चारों कार्बन एटम्स जो हैं, दीज आर काइंड ऑफ आइडेंटिकल ओनली, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट आप यहां से करो या यहां से करो, यहां से करो या यहां से, इन ऑल केस इट विल बी अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ओनली। तो मैं इसकी रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं, क्लोरीन in presence of sunlight, it gives CH3, C, CH3, CH2Cl, CH3 and HCl। अगर ये क्लोरीन इस पोजीशन पे ना होके इस पोजीशन पे आता या फिर इस पोजीशन पे आता तो भी ये कंपाउंड सेम ही रहता, इसकी IUPAC नेम सेम होती। अभी इसकी IUPAC नेम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम? 1-chloro 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट? और आप बाद में ये वर्कआउट करके देख लेना, अगर आप किसी दूसरे मिथाइल ग्रुप से भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन से दिखाते हो, अगर क्लोरीन की पोजीशन यहां यहां या यहां दिखाते हो तो भी आपका IUPAC नेम सेम आएगा, 1-chloro 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरे में पूछ रहा है दैट विच अमंग दिस विल बी फॉर्मिंग, which among this will be forming 3 monochloro derivatives। कौन सा ऐसा आइसोमर है जो 3 अलग अलग तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करेगा? तो अब देखिए, नॉर्मल पेंटेन को कंसिडर कीजिए, इसमें ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल है ना? ये वाला और ये वाला CH2 ये भी आइडेंटिकल है, ये दोनों। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई ईदर ऑफ दिस टू, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया ईदर ऑफ दिस टू, और तीसरा पॉसिबिलिटी हो गया ये, राइट? तो टोटल 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। चलिए एक एक करके जो है इसकी भी रिएक्शन हम लिख देते हैं और वो 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स भी लिख देते हैं। सो reaction is chlorine in presence of sunlight। इसमें मिलेगा सबसे पहले CH3 CH2 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 Cl, this is 1-chloropentane। क्या है ये? 1-chloropentane। then next is CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, this is 2-chloropentane। और तीसरा मैं यहां लिख दे रहा हूं CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, इसका IUPAC नेम 3-chloropentane। फाइन। अब 1 मिनट के लिए सनी जरा सोच के देखिएगा कि अगर हमने ये 3 डिफरेंट कार्बन एटम से एक एक करके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दिखाया, राइट? अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता तो भी जो प्रोडक्ट बनता वो 2-chloropentane ही होता ना। या फिर अगर मैं ये वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करके इस वाले कार्बन एटम से करूं तो भी प्रोडक्ट इज 1-chloropentane। तो अब समझ में आया कि ये दोनों आइडेंटिकल, तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन दोनों में से किसी एक में से मिलेगा, दूसरा इन दोनों में से किसी एक से मिलेगा और तीसरा इससे मिला, राइट? तो 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म करने वाला आइसोमर इज नॉर्मल पेंटेन। और ये वाला जो है ना, दिस विल बी फॉर्मिंग 4 डिफरेंट, ये 4
डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करेगा। ये जो आपको 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं ना, इन चारों कार्बन एटम से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट विल बी गिविंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट। सो दिस इज योर होमवर्क। ये आप खुद ट्राई करोगे। आपको क्या करना है, 1 by 1 यू हैव टू कीप रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस। एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन डाल के देखिए और उसकी IUPAC नेम। ऐसे टोटल आपको इसमें 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। फाइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अल्कीन्स में एक तो मार्कोनिको हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिशन ऑफ हैलोजन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। लेकिन इसमें यू विल बी गेटिंग विसिनल डाइब्रोमाइड्स। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, विसिनल डाइब्रोमाइड। बहुत पॉपुलर है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जरूर याद होगा। अनसैचुरेशन का भी एक टेस्ट है, नहीं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अच्छा देखते हैं एग्जांपल। So from alkenes we have one more method left, which is by addition of halogen to alkenes. I will be taking only one example under this, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर पढ़ा हुआ ही है, ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही जस्ट पढ़ा है हमने। तो एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा सिर्फ, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एंड लेट्स टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट CCl4, या तो ब्रोमीन वाटर लो या ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। सो डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड ऑन बोथ द कार्बन एटम ब्रोमीन गेट्स एडेड। ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज और रेडिश ब्राउन, एंड व्हेन द अल्कीन्स आर पास थ्रू ब्रोमीन वाटर द रेडिश ब्राउन और द ऑरेंज कलर डिसअपीयर्स। दिस इज एक्चुअली एन अनसैचुरेशन टेस्ट। इससे पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फाइन, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, व्हिच इज द नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज बाय halogen exchange reaction। बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें दो पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और सेकेंड है स्वार्ट्स रिएक्शन। पहले फिंकलस्टाइन देखते हैं। फिंकलस्टाइन में एक चीज याद रखना बहुत ही स्पेसिफिक, दैट इट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स ओनली। इससे आप सिर्फ आयोडो अल्केन या अल्काइल आयोडाइड की ही प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइन, इससे सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही प्रिपेयर होगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, जनरल फॉर्मूला लिखता हूं पहले। जनरल रिएक्शन RX मींस अल्काइल हैलाइड, जिसमें हैलोजन जो है ना वो या तो क्लोरीन एटम होगा या ब्रोमीन होगा। हैलोजन इज ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम आयोडाइड NaI। द रिएक्शन टेक्स प्लेस ईदर इन ड्राई ईथर और ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट। रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट क्या लेंगे, ड्राई ईथर और ड्राई एसीटोन। ड्राई ईथर और ड्राई एसीटोन, दिस इज द सॉल्वेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ये सिंपल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आयोडाइड आयन, the nucleophile from here will replace the halogen either chlorine or bromine। जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन एटम होगा उसे रिप्लेस कर देगा। तो फॉर्म क्या करेगा, इट विल बी फॉर्मिंग RI, आयोडो अल्केन, एंड NaX।
अब यहाँ पे आपको ड्राई ईथर और ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, सोडियम हैलाइड, कैसा कंपाउंड है? बाई प्रोडक्ट कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इट इज? आयोनिक कंपाउंड। सॉल्वेंट कैसा है? ऑर्गेनिक। तो ये आयोनिक कंपाउंड इसमें तो सॉल्युबल होगा नहीं, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट होता जाएगा, इट इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट। और जैसे जैसे ये प्रेसिपिटेट होगा, एज पर ले शटेलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट है ले शटेलियस प्रिंसिपल। ले शटेलियस प्रिंसिपल में कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और उसमें आप कोई चेंज करते हो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जिधर होने वाले चेंज के इफेक्ट को कम कर सके। तो आप इसमें से अगर NaX रिमूव कर रहे हो तो ये रिएक्शन और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए कि और NaX फॉर्म हो पाए, राइट? और इससे क्या होगा? यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड विल इंक्रीज, है ना? तो यही पर्पस है। आप इसको मैं यहां नोट कर देता हूं। NaX gets precipitated in dry acetone which cause equilibrium to shift right according to Le Chatelier's principle, and increase yield of alkyl iodide। तो ड्राई ईथर और ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि आपका बाई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो। इसके प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और इट विल कॉज मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, यील्ड विल इंक्रीज। फाइन, ओके। द नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज में ही नेक्स्ट मेथड है, ये भी नेम्ड रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन में भी आपको फिंकलस्टाइन की तरह ही एक चीज याद रखनी है, दैट स्वार्ट्स रिएक्शन इज मीन्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। स्वार्ट्स रिएक्शन से सिर्फ फ्लोरो अल्केन्स ही बनेंगे, इससे क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन नहीं बनेगा, फ्लोरो अल्केन भी नहीं बनेगा, सॉरी ओनली फ्लोरो अल्केन बनेगा, राइट? इसमें हम क्या करते हैं? द alkyl halide where halogen can be chlorine or bromine, even iodine, treated with heavy metal fluorides। इसको heavy metal fluoride के साथ हीट किया जाता है, it is heated with heavy metal fluoride। heavy metal fluoride में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हो, हेवी मेटल फ्लोराइड्स, यू कैन यूज सिल्वर फ्लोराइड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी जगह पे आप एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर सकते हो, आप कोबाल्ट फ्लोराइड यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। हेवी मेटल फ्लोराइड यूज करना है, मतलब उस मेटल का मास ज्यादा होना चाहिए, राइट? इससे क्या मिलेगा? हैलोजन विल बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, और इसके साथ मिलेगा प्रेसिपिटेट ऑफ AgX। ये भी आपके ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट में ही होगा, एंड अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म। तो अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, याद रखिएगा आपको अब से कन्वर्जन काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे।
तो जहां पे भी कन्वर्जन क्वेश्चंस में फ्लोरोअल्केन की प्रिपरेशन पूछी है, आपको पूछा है कोई कंपाउंड है स्टार्टिंग का और आपको फाइनल फ्लोरोअल्केन बनाना है, समझ जाओ वहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। अगर आपको आयोडोअल्केन बनाना है तो इसी तरह आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन जरूर इन्वॉल्व होगी। कल जो क्वेश्चन दिया था वो ना, हाँ उसमें फिंकलस्टाइन रिएक्शन से भी आएगा। अभी मुझे आपका आंसर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आंसर शीट दूंगा तो देख लेना, उसमें लिखा होगा। ओके चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, 1 मिनट, preparation of haloalkane is over here. Now we will move on to preparation of haloarine. टोटल हमने मेजर कितने मेथड्स डिस्कस किए? 3। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ये 3 हमने किसके लिए डिस्कस किया? हेलोअल्केन्स के लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। इसमें फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी ऐसा कहो कि कुछ दिन पहले ही जस्ट हमने पढ़ा है। हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है। सेम वही रिएक्शन, सेम वही पार्ट हैलोजिनेशन वाला यहाँ फिर से हमें डिस्कस करना है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि इस बार इन प्लेस ऑफ शोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, आई विल बी टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो लेट्स टेक टॉल्यूइन ले ले। This compound is toluene. Toluene upon reaction with chlorine and in presence of ferric chloride as catalyst. कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? फेरिक क्लोराइड। और कोई कंडीशन कही थी मैंने, याद है? और कोई कंडीशन कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन के लिए, और कंडीशन मैंने बताए थे कैटलिस्ट के अलावा। लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और कंडीशन भी आपसे मेंशन किया था। डार्क कंडीशन होना चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। डार्क एंड कोल्ड कंडीशन। सो हियर अब देखो बेंजीन में एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस काम आएगा। हमें पता है मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट में क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरे प्रोडक्ट में मिलेगा क्लोरीन एट पैरा पोजीशन। एंड प्लस HCl, इसको हम कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड दिस इज पैराक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, दिस इज पैराक्लोरोटोल्यूइन। मैकेनिज्म भी आपने प्रैक्टिस की है, आप लोगों से मैकेनिज्म करवाया है मैंने इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो आई होप अभी तक आपको याद हो। एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा इसकी मैकेनिज्म लिखने की। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? इसमें आप पारा प्रोडक्ट को जो है लेके चलोगे, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इस रीजन की वजह से पैराक्लोरोटोल्यूइन आपका मेजर प्रोडक्ट है। दूसरी मेथड है यहाँ पे बाय सैंडमियर्स रिएक्शन।
by Sandmeyer's reaction. इस रिएक्शन की खासियत ये है कि सैंडमियर रिएक्शन अभी पढ़ने को आएगा और 14th चैप्टर में, नॉट 14th चैप्टर, अब तो चैप्टर नंबर चेंज हो गया, अमाइंस चैप्टर में आपको फिर से ये पढ़ने को आएगा। तो अमाइंस में आप हैलोजन के रेस्पेक्ट में जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे ना, वो आपको सारा यहाँ पे ही बता दूंगा। 2 स्टेप में रिएक्शन पढ़नी है यहाँ पे, पहले डायएजोटाइजेशन एंड देन सैंडमियर। तो मैं सारा अभी आपको कवर अप करवा दूंगा। इसमें वी स्टार्ट विथ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। द सिंपलेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज एनिलीन। किससे स्टार्ट कर रहे हैं शौर्य? सिंपलेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जिसका नाम क्या है? एनिलीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनिलीन। और एनिलीन का पहले हम कर रहे हैं डाईएजोटाइजेशन। व्हाट वी आर डूइंग? डाईएजोटाइजेशन। कैसे करते हैं डाईएजोटाइजेशन? बाय रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 and HCl and maintaining the reaction temperature at 273 to 278 Kelvin. कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट वी टुक सिंपलेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन। एनिलीन का हमने किससे रिएक्शन किया? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ये दोनों डाईएजोटाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? डाईएजोटाइजिंग एजेंट। इसमें रिएक्शन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही हो पाएगी, या यूं कहो कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 to 283 केल्विन ओनली। हायर टेम्परेचर पे जो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए ये टेम्परेचर आपको एग्जामिनेशन में भी मेंशन करना मस्ट है। आपने सपोज अगर पूरा रिएक्शन सही लिखा और टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है? सो ये रिएक्शन क्या करता है? दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स aniline into this compound which is called benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. ये जो आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख रहा है ना, विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, दिस इज एक्चुअली इन रेजोनेंस इट विल बी प्रोड्यूसिंग N डबल बॉन्ड N ऑल्सो। और ये जो N डबल बॉन्ड N है ना, इसको डाईएजो ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाईएजो ग्रुप, इसीलिए इसका नाम है बेंजीन डायazonium क्लोराइड। आपको चारों के चारों हेलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन अभी बता देता हूं। अभी प्रेजेंट आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो आपको सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो अल्केन्स की प्रिपरेशन बताई है। इसमें मैं आपको फ्लोरो का भी अभी बता दे रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे? आफ्टर वी प्रिपेयर बेंजीन डायazonium क्लोराइड, वी विल ट्रीट इट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे रिएक्ट करेंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड। नाम याद रहेगा, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करने पे इट विल बी फॉर्मिंग बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट। क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ? बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट, और यहां HCl हट गया।
and benzene diazonium fluoroborate is further heated, which forms fluorobenzene, N2 gas and boron trifluoride. ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो गया। याद रखिएगा कि फ्लोरोबेंजीन को हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट क्लोरिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन के लिए भी हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन के लिए भी हम डायरेक्ट आयोडीनेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडेट कैटलिस्ट। ये भी पढ़ाया हुआ हूं आपको, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयोडेट कैटलिस्ट is used in preparation of iodo derivatives by electrophilic substitutions। क्यों? क्योंकि जो HI फॉर्म होगा उस HI को हाइड्रोजन आयोडेट या नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, I2। इससे रिएक्शन आपका कंटिन्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा। लेकिन आप फ्लोरोबेंजीन के लिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा और आपको एक मोनो सिंगल फ्लोरो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने का द बेस्ट रूट इज दिस। क्या करेंगे, एनिलीन से स्टार्ट करेंगे, एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन, आफ्टर डाइएजोटाइजेशन ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या मिला, बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट, एंड बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट इज हीटेड टू गिव फ्लोरोबेंजीन। सिंपल है। नेक्स्ट है, इसमें क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, इसका रिएक्शन कीजिए CuCl, कई बुक में CuCl लिखा होगा, कहीं पे Cu2Cl2 लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं एंड इसके साथ HCl भी रहता है, इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस NHCl। इसी तरह CuBr in presence of hydrobromic acid will be forming bromobenzene, nitrogen gas and HCl। ये जो दो रिएक्शन है ना, यही दो रिएक्शन सैंडमियर ने दिए थे। एक्चुअली सैंडमियर ने और भी रिएक्शन दिए हैं, लेकिन आपको ये जो मैंने हेडिंग लिखा ना, बाई सैंडमियर्स रिएक्शन, इसमें ओनली दिस टू रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैंडमियर्स रिएक्शन। यही दो रिएक्शन सिर्फ आपके सैंडमियर्स रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। सैंडमियर्स रिएक्शन, बाकी दोनों, एक तो अभी बाकी है बताना, दिस इज ऑन हिटिंग विथ पोटेशियम आयोडाइड कन्वर्ट्स टू आयोडोबेंजीन, N2 गैस एंड KCl। ठीक है, चारों का चारों डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, ऑल फोर डेरिवेटिव्स गॉट फॉर्म्ड। So out of all these four, only these two comes under category Sandmeyer reaction। एक चीज यहाँ पे मैंने और समय और स्पेस दोनों को सेव करने के लिए यहाँ पे एक ही बार डायazonium सॉल्ट लिखा और उससे मैंने एरोज करके चारों रिएक्शंस यहाँ प्रेजेंट कर दिए। आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाए सैंडमियर रिएक्शन का, तो उसमें सेपरेट करके आपको फिर यही दो रिएक्शन लिखने हैं अलग अलग। गेटिंग इट क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट preparation of haloalkanes and haloarenes. Two major topics have been completed. One is classification and the second one is preparation of haloalkanes and haloarenes. Now in the coming session we will move towards physical properties of haloalkanes, haloarenes, which is comparatively very small part. After that
we will have discussion on to chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Okay, so be ready for that. In tomorrow's session, we will continue with it. Fine. Bye.